Okay, now for the hatch covers, hatch openings are protected by weather-tight steel hatch covers, which are spread about 45 to 60% of the ship's breadth and 57 to 67% of the length of every cargo hold. So your efficiency on ship's bulk carrier should be that your discharge level should be fast and your safety should not be compromised. So your hatch cover strength and weather tightness is important for seaworthiness. And if your coamings deflections are there or your hull movements are such, you cannot have your sealing done by your hatch covers. So there you have to see that what corrections you have to do to your hatch or hatch covers. So your ship restraints, locators, support pads, sealing, they should be such that it should not affect your weather tight integrity, not watertight, but weather tight integrity. Now your cargo systems built on these hatch covers should be such that they will not be affected by your seawater, which can be corrosive, can cause corrosive effect. Corrosion free or easily replaceable components should be therefore manufactured to have better sufficient corrosion margins. Now your hatch covers are position 1 and position 2 होता है hatch में. तो आपको भी बता देते हैं what is position 1 and what is position 2. Now this is your position 1 of your hatch covers. So यहाँ जो that is 25% aft of your forward perpendicular और उससे पीछे होता है position 2. Here the onslaught of green sea is maximum from forward. So your maximum height of your hatch coaming in this area, position 1 is 600 mm. And the hatch cover has to take a load of 1.75 metric tons per meter here. In position 2, your hatch coaming minimum height should be 450 mm and the hatch cover should take a load of 1.3 meters metric tons per meter here. So यहाँ position 2 है, ये position 1 है. So वही चीज दिया, hatch cover need to withstand a load of 1.75 tons per meter square from the forward perpendicular to back 25%. And after that, the load will be 1.3 tons per meter square. Forward hatches must have a coaming height of at least 600 mm, which is position 1. And position 2, the height of coamings will be 450 mm. So here you have bulk carriers having 4 to 4.5 McGregor hatches or transverse McGregor hatches. The mechanical ones are used basically by wires and all. They are operated by that. So they are folding, sliding, rolling and fitted with securing devices to make them weather tight. Presently, most hatch covers have got either hydraulic system or electrical rolling system with use or a single controlling device there. Now your weather tightness of hatch cover at the coamings and cross joints. So the international load line says that your minimum freeboard should be drafted so that you can be allowed to load to sail for a safe voyage. अब ये load lines in details I'll be teaching in phase 2.
So your regulation on how to construct and set up vessels to avoid entry of sea into openings, and mainly you have to have the safety of vessel, because ship construction rules are the safety of ship, not of the cargo. So the convention requires hatch covers to be weather tight and not watertight. So low line convention itself states that weather tight means that in any condition of water will not enter the ship. Sea condition. Effective sealing is required between the coaming and hatch cover to keep the hatch covers weather tight. That is achieved by seal that compression bar will exert on the rubber packing. And then you have quick acting cleats between the hatch cover and coaming. And the panel or pontoons are sealed on top by क्रॉस जॉइंट वेजेस. अब ये बताते हैं क्या है क्रॉस जॉइंट वेजेस, क्या है और क्लीट्स क्या है. मैं हैच कवर बना रहा हूं, जैसे ये हैच कवर है. और ये एक हैच कवर और है, दूसरा हैच कवर. और यहाँ आपके ये हैच कवर ही है, और यहाँ आपकी कोमिंग रहेगी. सर ये ट्रांसफर्स है? नहीं, ये 4.5 जा रहा है. ये दो हैच कवर्स है. ये साइड रोलिंग वाले नहीं, मैं दिखा रहा हूँ. ये 4.5 रोलिंग, 4.5 ओपनिंग वाले बता रहा हूँ. मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको क्रॉस जॉइंट्स क्या होते हैं और क्लीट्स क्या होती हैं. तो सपोज ये आपकी हैच कवर है और यहाँ आपकी हैच कोमिंग है. ठीक है, ये हैच कोमिंग्स है यहाँ. तो ये आपकी हैच कोमिंग्स हैं. और यहाँ आपकी स्टे बनी हुई है, हैच कोमिंग स्टेज सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये आपकी हैच कोमिंग स्टेज बनी है. यहाँ आपकी स्टेज बनी हुई हैं. ये अलग अलग स्टेज बनी है. ठीक है. अच्छा, यहाँ आपका एक कट बना होता है. वो कट क्या होता है, उसका नाम क्या है? कट देखा है, ऐसा कट होता है. ये कट क्या है? स्कैलप. कट. हाँ, अब याद आ गया ना. स्कैलप. हाँ, स्कैलप. अब याद आ जाएगा, क्यों ड्राइंग में बना रहा हूँ ना सामने आपके, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या बात कर रहा हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ. तो आपके सामने हैच कोमिंग ले आया मैं. अब यहाँ आपके ये तो आपकी हैच सपोर्ट्स हैं, हैच कोमिंग सपोर्ट्स. अब यहाँ आपकी जो होती है एक लाइन, सपोज ये लगी हुई है, ऐसे ये लगी होती है. हमने तो बहुत पहले जहाज किया था, लास्ट किया था वो 85 में किया था. दैट वाज प्रफुल्ला. तो ये जो होता है, यहाँ आपकी क्विक एक्टिंग क्लीट्स लगी होती है. तो एक स्लॉट सा बना होता है और यहाँ क्लीट सेट होती है. तो क्लीट से क्या है, रैकिंग स्ट्रेट्स अवॉइड करते हैं. ये क्लीट लगी होती है. ठीक है, तो यहाँ आपकी एक और ऐसे क्लीट लगेगी. ऐसे ही होती है ना क्लीट? यस सर. हाँ, Yes. तो ये साइड में ये क्लीट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बंदों को नहीं मालूम है उनको कम से कम समझ आ जाए क्या बना रहा हूँ मैं. तो ये क्लीट है. ये कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा, ऊपर में क्रॉस जॉइंट लगाते, जैसे हमारी चिटकनी होती है ना, तो एक बार मारा जाता है यहाँ. इसको ऐसे सेक्शंस होते हैं, उनके अंदर ये बार मारा जाता है, ताकि ये जो हैच कोमिंग है कंप्रेशर बार के ऊपर फिट हो जाए. ये क्लीट से नहीं होगा. ये जो आपके
इसका नाम जो है आ गया क्रॉस जॉइंट वेजेस। ये जो ऊपर में लगा होता है उसको क्रॉस जॉइंट वेज कहते हैं, और जो नीचे लगा होता है ना वो ये आपके क्लीट्स हैं। तो मैं जरा लेबल कर रहा हूँ, ये आपका क्रॉस जॉइंट वेज है। क्रॉस जॉइंट वेज, और इससे आप इसको ऊपर से बंद करते हो जैसे चिटकनी लगाते हो, और साइड में आपके जैसे स्कूल में टिफिन ले जाते तो साइड से चिटकनी ये उठाते थे, वो क्विक एक्टिंग क्लीट्स हैं। तो ये क्लीट्स हैं, तो दीज आर द क्लीट्स। इसको जरा कलर कर दूं तो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएगा। तो थोड़ा रियलिस्टिक हो गया ना, लगेगा असली बना हुआ है। और यहाँ कलर था, अरे चलो इसको इसको हटा देते हैं। ये हो गया आपका। अब समझाना शुरू करते हैं। तो क्रॉस जॉइंट ऊपर लगता है, क्लीट साइड में लगती हैं। वेजेस जो ऊपर लगा रहे हैं, क्रॉस जॉइंट या वेज लगाते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द पॉन्टून टॉप्स। कंप्रेशन बार पे होते हैं तो विद टाइटनेस आपको हो जाता है, बिकॉज पैकिंग के ऊपर प्रेस करता है। सो जो गैस्केट जो होता है, दैट इज सॉफ्ट इलास्टिक मटेरियल इज कंप्रेस्ड टू अचीव वेदर टाइटनेस। अगर ये गैस्केट हार्ड हो गया तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड हो गया तो पानी अंदर चला जाएगा। So similarly, sealing arrangement is made between cross joint elements. Compression flat bar is made of corrosion resistant material. It is well rounded to contact with the gasket. And the gasket material should be compatible with your cargo. Quality अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए उसको. And it should be adequately secured to the hatch cover. So composition and type of gasket selected should be considered taking account your type of cover, securing arrangement, and the movement between the hatch cover and the ship structure during sea passage. तो ये जो हैच कॉर्नर आपको कराया था, हैच कॉर्नर आपको कराया था कि नहीं कराया था डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस में? तो ये जो हाँ सर, है करवाया हैच, था। हाँ तो ये आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी जो आपको बताया था। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। ये हैच कॉर्नर्स कैसे होते हैं, गसेट प्लेट कहाँ होती है, ये हैच कोमिंग है, इसके ऊपर हैच कवर आएगा। ये आपको कराया हुआ है। तो ये जो ऊपर में दिख रहा है ये क्रॉस जॉइंट क्लीट है, क्रॉस जॉइंट वेज है, क्विक एक्टिंग क्लीट्स यहाँ है। अब ये बताओ, ये वॉकवे एक्चुअली अलाउड है कि नहीं है? ऐसा वॉकवे होना चाहिए जहाज पे? इज दिस वॉकवे अलाउड और नॉट? इट इज नॉट अलाउड। ये किसी ने टाइम पास बना दिया है, क्योंकि ये तो साइड रोलिंग हैचेस है, इसके ऊपर वॉकवे कैसे हो जाएगा? इन्होंने क्या किया जुगाड़, इन्होंने वेल्डिंग कर दी है, और जब साइड रोलिंग होगा तो ये खुल जाएगा, और जब बंद होना होगा इसको कनेक्ट कर देंगे। ये वैसे शिप कंस्ट्रक्शन रूल से अलाउड नहीं है, और इसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बट इसने ये वॉकवे इसके ऊपर बना दिया, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, जो दिस इज, ये फोटोग्राफ डाली हुई है किसी ने नेट पे, ये अलाउड नहीं है। तो ये साइड रोलिंग हैचेस है। तो आपका हैच कवर हैच कोमिंग दिखाया है, और ये हैच कवर रबर सील के ऊपर प्रेस होता है, और उसके कारण यहाँ कंप्रेशन बार से विद टाइटनेस आ जाती है। तो दिस इज सील बार, ये हैच कोमिंग आ गई। नाउ व्हाट आर द क्विक एक्टिंग क्लीट्स, इसका भी डायग्राम आपको दिखा दें। ये क्लीट्स आपकी हैं, इसके ऊपर एक होल होता है, और आपके पॉइंटेड रॉड्स आती हैं, उस पर लगा के हम इसको बंद कर सकते हैं और नीचे से टाइट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको मेंटेनेंस में ये चेक करना है कि इसके अंदर जो गैस्केट है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ख़राब हो जाएगा ये लूज गिर जाएगा, कंप्रेशन बार खुल जाएगा, तो ये रिलीज हो जाएगा और ये क्लीट निकल जाएगी। सो ये गैस्केट्स को चेक करते रहना।
So quick acting cleats have to be monitored as they will suffer from wear and tear, which can compromise the weather-tight integrity of hatch cover. Rubber bush of the cleats has to be changed at regular intervals when they are worn off. So daily check should be done of hydraulics, and the cleat should not be too tight or too loose. तो वो गड़बड़ हो जाएगा. Washers or cushions have to be used when your rod cleats are fitted, and hydraulic cleating to be done to assure it's properly mechanical locked in the closed position. कि in case आपकी failure भी हो जाए तो आप इसको खोल सकते हो. It should be ensured that the securing devices are of adequate construction and securely attached to the hatchway. Individual securing devices on each hatch cover to be approximately similar stiffness characteristics. अलग टाइप के नहीं हो सकते. तो ये आपके क्लीट्स हैं. ये आपको बताया था रॉड, ये वही रॉड है, उसको अंदर डाल के उसको लॉक कर सकते हैं. ये उसके पार्ट्स दिखाएं. ये वही डायग्राम है. नाउ पहले जो होते थे वुडन हैच कवर्स होते थे जहां वुडन टारपोलिन लगाया जाता था, जैसे ये वाले हैं आपको दिखा रहा हूँ. तो इस टाइप के आपके पोर्टेबल बीम्स होते थे, इनको ऐसे फिट करके डायरेक्ट से उठाते थे. तो ये वाले वुडन हैच कवर्स होते थे पहले. तो उनके ऊपर टारपोलिन लगा के उसको वेदर टाइट बनाते थे. आजकल आपके मैकग्रेगर स्टील हैच कवर्स आ गए. So cargo storage spaces of any kind should be protected in order to preserve the cargo and prevent any kind of spoilage. So cargo space needs to be air and watertight for conserving the cargo goods for a longer time. And the cargo that is carried contains perishable foods, then it has to be important to protect it from moisture and adverse weather. So if you don't do it, then you can have a lot of diseases there. So hatch covers come in rescue, like a lid in a box, and they cover and protect the cargo in cargo spaces. So they can close off the hatch coping and make it weather tight. Earlier wooden ships, hatch cover वो wooden planks के होते थे, with beams and boards and covered with tarpaulin. Wooden hatch covers had a lot of drawbacks because they used to get exposed to wind and sea, so they used to get affected by fungal infections, fungal effect on the wood, and then they used to break open. So rain, sea would have detrimental effect on wooden hatch covers. Therefore, your steel hatch covers started. So all these are now patented by MacGregor. अब आता है ऑयल टाइट हैच कवर्स. ये आपको मिलेंगे टैंकर्स में. अब इसमें सीलिंग किस टाइप की होती है भाई? टैंकर वाले मैन एंट्री के जो हैच कवर्स हैं ऑयल टाइट वाले, इसकी सीलिंग किससे होती है? रबर गैस्केट होता है, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? नियोप्रीन. हाँ, नियोप्रीन के गैस्केट होते हैं. तो फिर नहीं, रबड़ के ऑयल टाइट होने चाहिए ना, वाटर टाइट नहीं. हाँ नहीं, मैं ये बलास्ट नहीं है, ये आपके कार्गो टैंक्स के हैं. नहीं है, कार्गो टैंक्स को नियोप्रीन के गैस्केट लगते हैं इसमें, वाइट कलर वाले. ये वाले अलग अलग शेप है. अब आपके जहाज पे कैसी शेप थी वो आप देख लो. अब आते हैं रोलर. इसको क्या कहते हैं? कौन से रोलर हैं यहाँ? हाँ, रोलर्स में एक शाफ्ट होता है जिसकी यहाँ ग्रीज निपल होता है, यहाँ से आप ग्रीजिंग करते हो, इसके अंदर जाती है, एंड देन ये फ्री रहता है. तो शिप रोलर जो है अलग अलग टाइप के हैं. नॉर्मली कास्ट स्टील के होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, बिल्ट विद सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिंथेटिक बेयरिंग्स, एंड दे हैव नियर मेंटेनेंस फ्री वर्किंग लाइफ. So standard deck roller is a warping roller. This offers highest wire breaking strain. Will come in various models. और इसके अंदर shaft होती है, removable shaft होती है.
So common combination will have double warping rollers with plate और 3 warping rollers with plate, जो भी हमने देखा था. फिर एक आता है ओल्ड मैन. ओल्ड मैन एक पेडेस्टल रोलर है जिसको रेज किया जाता है डेक पे, एंड द बेस इज मेड ऑफ रोल्ड स्टील प्लेट फॉर स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ. अभी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा इसकी. तो ये वाला मल्टी एंगलर है और आपको पेडेस्टल रोलर भी दिखाते हैं. ये वाला, ये ओल्ड मैन है. तो इसमें स्पिंडल होता है, यहाँ मल्टी ग्रेजिंग एंगल तो आई होती है. थिंक डिसकंटिन्यू कर दिया है ना सर अभी. मल्टी एंगलर होता है ग्रेट लेक्स में. ग्रेट लेक्स में होता है, जाके जहाँ जो ग्रेट लेक्स में आपके कई लॉक्स होते हैं, 13 लॉक, वहाँ यूज होता है. हमने हमारे टाइम वहाँ था. हर एक जहाज में नहीं होता मल्टी एंगलर. ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू सर्टेन एरियाज वेयर लॉट ऑफ लॉक्स आर देयर, तो आपके जो नॉर्मल रोलर है उसको अटेंड नहीं कर सकते. तो मल्टी एंगलर रोलर हर एक डायरेक्शन में करेगा. ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, तो आपकी जो वायर जाएगी या रोप जाएगी उस पर स्ट्रेन कम आएगा. इसलिए मल्टी एंगलर रोलर हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हेन यू गो टू ग्रेट लेक्स. कोई गया है ग्रेट लेक्स? नहीं सर, नहीं वो गया. मेरे फर्स्ट शिप पे थे मल्टी एंगुलर रोलर. हाँ, मैं गया था ना. मैं पहली वॉयज में मतलब ये राजेंद्रा से निकले और जहाज ज्वाइन किया SCI का. दैट वाज इन 82. तो वी हैड ज्वाइन द शिप, और उसके बाद वो सीधा वॉयज गया था ग्रेट लेक्स. मॉन्ट्रियल से एंटर किया था. वी हैड गॉन राइट टिल डुलूथ, -42 डिग्री टेम्परेचर. सब फ्रेश वाटर लेक होती है. सो इसमें नायग्रा फॉल्स भी वहीं है, पर हमारा नायग्रा फॉल दिखेगा नहीं क्योंकि हम तो वही लॉक्स में जा रहे हैं. नायग्रा फॉल थोड़ा सा दूर था वहाँ से. तो एक साइड आपका कनाडा, एक साइड US है, और सारे आपके 5 फ्रेश वाटर लेक्स हैं. दे कनेक्टेड बाय लॉक्स. उन शिप्स में मल्टी एंगुलर रोलर्स चाहिए होते थे, बिकॉज जो आप पानी की फ्लडिंग करते थे बहुत फास्ट करते थे, और उतना स्ट्रेन नॉर्मल रोलर्स नहीं ले सकते. So movement of ship being fast and difference in height being enormous, the ship steadies itself on 2 wires forward and 2 wires aft, and the wires are passed through multi-angular fair leads to reduce enormous friction generated. Normal fair lead से वो कट जाएगी वायर, इसलिए multi-angular leads वहाँ चालू हुई. So multi-angular leads or rollers reduce your total number of fair leads required for mooring, docking, warping and locking operations. अब आता है पेडेस्टल रोलर. तो ये पेडेस्टल रोलर नॉर्मली क्या करता है, ये आपके जो रोप है वो विंच की 90 डिग्रीज में आएगा. जैसे आपको बताऊं ये 90 डिग्रीज वाला चक्कर क्या है. सपोज ये पेडेस्टल रोलर है यहाँ, और आपका जो विंच है ना वो यहाँ है. सपोज आपका विंच यहाँ है. विंच आपका ऐसे ही बना रहा हूँ विंच. अब आपका फेयर लीड सपोज यहाँ है, तो ठीक है. सपोज फेयर लीड आपका यहाँ है और अब आपकी रोप आ रही है, तो यहाँ से अगर रोप आएगी विच इज नॉट 90 डिग्रीज, तो यहाँ से स्लिप कर जाएगी. अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पेडेस्टल रोलर रखेंगे विच इज 90 डिग्रीज टू इट. अब हमने क्या किया, यहाँ से रोप लाई, यहाँ डाली, और यहाँ से मैंने 90 डिग्रीज पे इसको डाल दी. तो पेडेस्टल रोलर से क्या है, रोप आपकी डायरेक्ट हो जाएगी 90 डिग्रीज टूवर्ड्स द विंच. उससे क्या होगा कि इसके ऊपर ग्रिप सही रहेगा और स्लिप नहीं होगा. अदरवाइज इससे तो स्लिप कर जाएगा रोप. पेडेस्टल रोलर से रोप स्लिप नहीं करेगा. 90 डिग्री रहता है तो सर वो ओवरलैप नहीं होती है, एक के ऊपर एक नहीं करती जल्दी. हाँ, ओवरलैप नहीं करेगा ना. फिर वो नहीं तो एक के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर आपका फंस जाएगा, वहाँ लॉक हो जाएगा, उल्टा चक्कर हो जाएगा. So pedestal roller is also known as old man, dead man. So it is a fairly roller usually operating in horizontal plane, and its function is to change the direction of lead to a mooring or a line on deck. अभी आती पनामा लीड, ये सेंटर लाइन में होती है. अब इसका नाम पनामा लीड क्यों है, क्योंकि पनामा कैनाल में यहाँ से वायर पास होती हैं
जिसको लोकोस हैं वो पुल करती हैं. That's in the Panama Canal. So Panama lead is used in Panama Canal. The ship is hauled by small locomotives and the wires are sent out the leads. They are of adequate strength to prevent the metal being cut open by the wires. तो इसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग की जाती है पनामा लीड्स में आउटर लिप पे. सो दे में आइदर फिटेड टू डेक, रेलिंग के साथ फिटेड है या बुलवर्क में फिटेड है. अगर बुलवर्क में फिटिंग की गई है पनामा लीड की तो वहां स्टिफनिंग की जाएगी. अब ये मूरिंग बिट है. अच्छा, बिट और बोलार्ड का डिफरेंस बताओ भाई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बोलार्ड? क्या डिफरेंस है बिट बोलार्ड में? हाँ बोलो. बोलार्ड सर जेटी पे होता है. बोलार्ड जेटी पे होता है और बिट होता है जहाज पे. करेक्ट. और भाई यही डिफरेंस है. सर बोलार्ड में सर रोप बांध के रख सकते हैं सर. तो इसमें बांध के नहीं रख सकते. इसमें बांध के नहीं रख सकते हैं, खुला रखेंगे रोप. नहीं, इसमें हाँ? सर पतला होता नहीं है सर. पतला होता है सर. क्या क्या पतला होता है? रोप पतला होता है, वहां रोप मोटा होता है. यही. बीट सर पतला होता है, बोलार्ड मोटा होता है. अच्छा ठीक है. बिट सर पतला बिट्स होता हमेशा है, सर बोलार्ड. पेयर्स में आती हैं. अच्छा, बिट्स हमेशा पैर में आते हैं. और कुछ? और कुछ? एक खोखला होता है और एक सॉलिड होता है. कौन सा खोखला होता है, कौन सा सॉलिड होता है, ये बताओ. सर बिट्स खोखले रहते हैं. बीट्स क्यों खोखले खोखले होते हैं? बिट खोखला होता है तो ये खोखला क्यों है? हैं? खोखला क्यों है? क्या रीजन है इसको खोखला रखने के लिए? भाई इसीलिए वेट कम खोखला करना, है. लाइटनिंग. हाँ, लाइट शिप वेट को कम करना. हर एक चीज में लाइटनिंग होल बना रहे हैं, वो लाइट शिप वेट कम कर रहे हैं, तो इसको भी हल्का रखेंगे ना. भाई हमें शिप की वेट को कम करना है ताकि कार को ज्यादा लोड करेंगे. डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा ना ड्राफ्ट पे. डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा ना. तो अगर लाइट शिप वेट ज्यादा हो गया तो डेड वेट कम हो जाएगा. तो लाइट शिप वेट कम करोगे तो डेड वेट बढ़ेगा, कार को कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी. इसलिए हम इसको हल्का करने के लिए इसको हॉलो करते हैं, नीचे डबलर प्लेट लगाते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए. अब आपको जो एंगल की बात की, ये आपका जो है ये आपका पेडेस्टल रोलर है और ओल्ड मैन. अब सपोज हमने यहाँ से वायर ली, मैंने अगर यहाँ से डायरेक्ट पास की हो जाती तो स्लिप कर जाता, लॉक कर जाता. अब हमने 90 डिग्रीज इसको पास किया. ठीक है, तो ये वाले आपने 90 डिग्रीज पास किया और ये स्नैपबैक जोन्स बने हुए हैं आपके. कहाँ कहाँ स्नैप हो सकता है. और ये जो चेन जहां से जा रही है इसको क्या कहते हैं पता है? जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट. ये जो दांत हैं विंडलेस के, जिससे ये केबल जा रहा है एक तरफ हाउस पाइप में और पीछे की तरफ स्पर्लिंग पाइप में, ये दांत को हम वाइल्ड कैट कहते हैं. ये आगे बताएंगे वाइल्ड कैट क्या है. ये सब चीजें आगे लोगों को पूछते हैं, सब भूल भाल जाते हैं, याद नहीं रहती. अब यहां जैसे अगर आप देखो, आपका ये वर्टिकल अरेंजमेंट, ये देख ला, ये चेन लॉकर में जा रहा है, स्पर्लिंग पाइप से जा रहा है, यहाँ हाउस पाइप जा रहा है. और इसको वाइल्ड कैट कहते हैं दांत को. ये डेविल क्लॉ है इसकी लैशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा. राइडिंग पॉल हो गया, हॉर्स पाइप हो गया, कंट्रोलर और ब्रेक हो गया. अब आपको एक और चीज दिखानी है और ये टेंशन विंचेस हैं. अच्छा, एक और चीज आपको पूछनी थी. एक टर्म मैं भूल गया, जरा देख रहा हूँ वो कौन क्या टर्म है. हाँ, कैप्स्टन और विंडलेस में फर्क क्या है? जिप्सी और कैप्स्टन में फर्क क्या? चलो, जिप्सी और कैप्स्टन में फर्क क्या है, इसको क्या कहते हैं?
ये क्या है? इसको जिप्सी कहते हैं। वॉर्पिंग ड्रम सर। वार्पिंग ड्रम, इसको जिप्सी कहते हैं, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वार्पिंग ड्रम जिप्सी है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल है तो उसको कैप्स्टन कहते हैं, दिखा रहे हैं। ये चीजें आप ध्यान रखना, कैप्स्टन क्या है और जिप्सी क्या है। यहाँ देखो ये वाला ड्रम कैसे, ये वर्टिकल है ना। हाँ जब ये वर्टिकल होता है तो उसको कैप्स्टन कहते हैं, जब वो हॉरिजॉन्टल होता है जैसे ये है तो जिप्सी है। यही ड्रम अगर सामने ऐसे रहे कैप्स्टन है। जो जेटी पे होते हैं वो कैप्स्टन होते हैं सर। तो हाँ जेटी पे कैप्स्टन शिप पे भी होता है। शिप पे भी होता है, कई बार आर्ट्स में लगा के रखते हैं, फॉरवर्ड में भी लगाया होता है पुराने जहाजों में। मिडशिप पे है सर, हमारे- वीएलसीसीज में। हाँ मिडशिप में भी होता है, वो डिपेंड करता है तो कहाँ रहते हैं। अगर आपके पास साइड वाली जगह नहीं है तो आप वर्टिकली घुमाओगे उसको, साइड वाली जगह है तो हॉरिजॉन्टल रखोगे जैसे ऐसे। अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप वर्टिकल रखोगे। दोनों काम इसका पुलिंग है। अब ये ऑटो टेंशन वायर है, तो ऑटो टेंशन विंचेस क्या होती हैं कि जैसे आपका लोड ज़्यादा आता है थोड़ा स्लैक कर जाती है। अगर स्लैक हो गया तो वो खींच लेती है, टेंशन लिमिट सेट हो जाता है इसमें। ये ऑटो टेंशन वायर होती हैं, जब टाइडल पोर्ट्स में जाते हो तो वहाँ इफेक्टिव होता है। तो टेंशन विंचेस जो हैं ये, इसमें बैरल होता है और ये हॉल कर लेता है या रिलीज करता है टेंशन को। So warband is used when moving the ship using ropes or wires fastened on bollards ashore and wrapped around the warp end of the winch. Motor drive clutch से इसको खींचा जाता है। तो ब्रेक बैंड आपके बराबर होने चाहिए। अगर विंचेस के ब्रेक बैंड सही नहीं होंगे तो रिलीज हो जाएगा सारा कुछ। सिमिलरली आपका विंडलेस का ब्रेक बैंड सही होना चाहिए, तो आपका एंकर रिलीज हो जाएगा, आपका केबल एकदम रिलीज हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपको क्लच से चेंज करना पड़ता है। अगर आपको जिप्सी चलानी है या विंडलेस चलानी है तो डिपेंड करता है, आप क्लच लगा के उसको करोगे। तो ऑटोमेटिक ये सेल्फ टेंशनिंग अरेंजमेंट में ये ऑटोमेटिकली वो टेंशन को रिलीज करेगा, ये सेट होता है उसको ऑलरेडी। दिस इज ऑटो टेंशन विंचेस। सो नॉर्मली आप जब मूरिंग करते हो तो आप पहले आप विंडलेस के पंप चालू रखोगे सो दैट थोड़ा सा गर्माइश हो जाए, तो पहले शुरू करना पड़ता है स्टेशन से पहले। ये नहीं कि स्टेशन होए और आप चालू करो। It can be from 30 minutes to an hour. And cooling vents open the machinery working must be closed for sea passage. Now anchor handling arrangement जो है, कैसे आपका मूवमेंट होगा, ये चेन लॉकर में कैसे जाएगा। स्पर्लिंग पाइप का एक गाइड होता है जो उसको गाइड करता है, नहीं तो आपका सारा चेन डेक पे आ जाएगा। तो यहाँ गाइड होता है विच विल गाइड द चेन टू द चेन लॉकर थ्रू द स्पर्लिंग पाइप. So anchoring equipment is designed for temporary mooring a vessel within a harbor or sheltered area when the vessel is waiting berth. So it is assumed that under normal circumstances, the ship will use only one bow anchor and chain cable at a time. So windlass is a usual anchor handling device which may use to handle either one anchor or both anchors. So आजकल split windlass हो गई हैं so that one machine is used for each anchor. So you have cable lifter which is shaped snugs to grip the anchor. तो ये जो grip करता है उसको wildcat कहते हैं. The mooring drum for pulling out or letting go your mooring wires and warp end for warping duties. और फिर आप उसको डॉग क्लच से एंगेज करते हो, इसको आपके एंकर केबल को, विंडलेस को पहले करोगे, फिर जिप्सी को करो। तो ये जो है दांत, इसको कहते हैं वाइल्ड कैट, और ये आपकी मार्किंग की गई है केबल की। ये ब्रेक बैंड है, इसका ब्रेक बैंड का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो ये आपका एंकर रिलीज हो जाएगा इसके बिटर एंड के थ्रू। ये ध्यान रखना।
ये अब अगर आप देखो पेडेस्ट्रल रोलर 90 डिग्रीज पे दिया हुआ है यहाँ. So cable lifter unit is mounted to raise or lower the cable from spurling pipe at the top and the center of the chain or cable. Details of snug used to grip the cable and brake band can be seen. So anchor capstans vertical direction में move करते हैं. Only cable lifter unit is located on deck and the driving machinery is on the deck below. Warping end or barrel may be driven by the same unit and positioned near the cable lifter. तो ये आपकी ये सारी चीजें हो गई. अब आता है चेन लॉकर. तो चेन लॉकर में ये डायग्राम इतना ठीक नहीं है क्योंकि एंट्रेंस इन्होंने काफी दूर बनाई है बिटर एंड से. नॉर्मली एंट्रेंस इज नेक्स्ट टू द बिटर एंड ताकि हम इसको निकाल दें. तो कभी आप डायग्राम बनाओ ये एंट्रेंस को इधर बनाओ, नॉट यहाँ. सिलेंड्रिकल लॉकर आ गया, बिल सोल्डिंग पाइप, बिल सक्शन, बिल्ज वेल, और ये परफोरेटेड फ्लैट नीचे होता है ताकि पानी यहाँ से ड्रेन हो जाए और केबल सूखी रहे इसके ऊपर. और यहाँ जो पानी है दैट विल बी पंप्ड आउट बाय बिल सक्शन. ये चेन लॉकर है आपका. अब कैसे इसको बिटर एंड को लगाते हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज योर बल्कहेड है. यहाँ आपका स्ट्रेंथनिंग दिया गया है और इसमें एक स्प्लिट पिन लगाएंगे. एंकर केबल उल्टा लगाएंगे, सीधा नहीं लगाएंगे. इसीलिए क्योंकि स्प्लिट पिन निकालने से ये पिन गिर जाएगा और आपका केबल रिलीज हो जाएगा. तो बिटर एंड इसलिए दिया जाता है कि इमरजेंसी में सपोज आप एंकर पे हो, सम वेसल इज कमिंग टू यू ऑन अ कोलिजन कोर्स और आपका पावर नहीं चल रहा, आपका विंडलेस खड़ा उठेगा ही नहीं, यू कैन पिक अप योर केबल. कैसे चलाओगे? So you have to release your cable, release your anchor and then run away from that area, avoid collision. तो उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं होता. तो आप इसको मारोगे, ये पिन नीचे गिर जाएगा और केबल रिलीज हो जाएगा. ये क्लियर है सिस्टम? बिटर एंड क्या होता है? यस सर. Yes, sir. ये सब आप लोगों ने देखा होगा ना, सब कुछ देखा है आपने. तो चेन लॉकर क्या है? फॉल्स बॉटम इज फिटेड टू द चेन लॉकर कंसिस्टिंग ऑफ परफोरेटेड प्लेट जो नीचे है, so that your water and mud can be removed from the space. The end of the chain is attached to hull by quick release mechanism known as bitter end. So the strength of bitter end is basically larger than for vessel 6H. जो H है उसकी वैल्यू इंजीनियर्स को पता होती क्या है. So it should be not sufficient to prevent a runaway of unbraked chain. An arrangement should be easily accessible. आप उसके पर पहुंच सकते हो. So एंकर्स को जब प्रिपेयर करना है फॉर सी, उसकी लैशिंग लेनी पड़ती है. तो कैसे करते हैं भाई? हाउ यू प्रिपेयर योर एंकर फॉर सी? बताओ भाई क्या क्या करते हैं. एक आदमी बताएगा. चलो, वन ऑफ योर स्टूडेंट्स कैन टेल मी. कैसे आप एंकर को प्रिपेयर करते हो फॉर सी? आपने पोर्ट से निकल गए, RFA दे दिया, अब आपकी वॉयज लॉन्ग वॉयज है, आपको एंकर बोल दिया लैशिंग करो. क्या क्या करोगे? हाँ भाई क्या क्या करोगे बोलो भाई. ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ना, मैं पढ़ा के थोड़ा ना बताऊंगा इसको. ब्रेक क्या टाइट, करो? गियर आउट, एक्स्ट्रा लैशिंग ऑन एंकर चेन, और हाँ उसके जो आगे के कवर्स रहते हैं, इस हॉस पाइप कवर्स बंद करेंगे. हाँ बस. सीमेंट कर देंगे. हाँ सीमेंट करेंगे तो मतलब हाउस पाइप कवर के ऊपर डायरेक्ट सीमेंट लगा देंगे, ऐसा है? नहीं सर. फिर सर उसके ऊपर बरलैप डाल देंगे जिससे उसके अंदर अब पानी ना ठीक बोला, जाए. अब ठीक बोला. क्योंकि अगर हाउस पाइप कवर के ऊपर डायरेक्ट सीमेंट लगाए वो तो चिपक जाएगा, वो तो परमानेंट हो जाएगा. तो उसके ऊपर कैनवस या बरलाप लगाएंगे और उसके ऊपर सीमेंट डालेंगे सो दैट जब सूख जाए, अब आपको निकालना हो, एक टैप करेंगे वो निकल जाएगा और आप कवर निकाल सकते हैं. ठीक है. बॉस स्टॉपर भी लगाएंगे और पिन भी लगाएंगे. ठीक है. इसमें और भी चीजें हैं, बॉस स्टॉपर और डेविल्स क्लॉ लगाते हैं, बॉस स्टॉपर और पिन लगाते हैं, ये सारी चीज लगाते हैं. और वायर लैशिंग भी लगाते हैं. ये सब वही लिखा है. वायर लैशिंग लास्ट में देते हैं सर. हाँ वायर लैशिंग भी लगाते हैं.
और उसको बुलडॉग ग्रिप्स पे फिक्स करते हैं ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं करते फ्री एंड्स को, ठीक है। और फिर उसमें तेल वेल डाल के रखते हैं, बॉटम स्क्रू से टाइट करके रखते हैं सो दैट आप उसकी लैशिंग्स को टाइट कर सको बार बार। तो उसके बाद स्पॉइलिंग पाइप एरिया चिप ऑफ करते हैं, सीमेंट निकाल के स्पॉइलिंग पाइप कवर लगाते हैं, फिर बरलैप लगा के फिर सीमेंट डाल के उसको सील कर देते हैं सो दैट द वाटर डजंट एंटर द चेन लॉकर, ठीक है। फिर सीमेंट मिक्सचर लगा के इसको सील कर देते हैं। अब आता है केबल स्टॉपर, ये बॉव स्टॉपर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शिप्स में, क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ये ट्वाइस ऑफ चेन का स्ट्रेंथ है, जबकि ब्रेक जो है उसका हाफ होता है स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ चेन your safe working load of your brake band is half of your cable strength का, and bow stopper का safe working load is twice of the cable strength of the cable। तो इसीलिए एंकर पे हम सिर्फ ब्रेक पे नहीं रखते, क्योंकि ब्रेक पे रखेंगे कुछ स्ट्रेन आएगा तो आपका तो एंकर रिलीज हो जाएगा, इसलिए हम बॉव स्टॉपर पे रखते हैं। ये बॉव स्टॉपर है या केबल स्टॉपर। तो इसको आप फिट करते हो और उसमें पिन डालते हो, ये सब आप ये डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। So chain stopper may be of various designs to hold the cable. It is passed through your stopper with a holding bar lifted up by counterweight on top, and there is a pin to hold the bar in position. So once the decision has been taken to hold the cable, the safety locking pin is removed and the bar is eased down on the cable. So the default position of holding bar is to arrest the cable. Only an effort is required to keep it up. So once the bar is placed on the cable, it may be adjusted a little to ensure that the flat bar is on that holding area and not vertical section, otherwise वो slip off कर जाएगा। थोड़ा गैप भी रखना चाहिए, 2 उंगली का गैप, so that पूरा जाम ना हो। So it is to introduce to prevent the bar from jumping up in case the cable slip from the brake, otherwise ये निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगली बार कराएंगे, अब तो टाइम हो गया। सैमसंग पोस्ट एंड मास्ट जो है वो अगली बार कराएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।